منشیات سمگلنگ میں گرفتار رانا ثناء اللہ کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کیمپ جیل منتقل۔ اے این ایف کی ٹیم نے ضلع کچہری لاہور میں پیش کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو رانا ثناء اللہ کی گرفتاری سے آگاہ کر دیا گیا۔ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں لیگی رہنما نے کہا ظلم اور جھوٹ کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی۔ سابق ایم پی اے اور رانا ثناء اللہ کے قریبی ساتھی شیخ اعجاز بھی زیر حراست۔ چھاپے کے دوران رانا ثناء اللہ نے منشیات کی نشاندہی خود کی۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے خود بریف کیس کھولا جس سے 15 کلو ہیروئن برآمد ہوئی۔ منشیات لاہور سمگل کرنے کی اطلاع مخبر سے ملی۔ چھاپے کے دوران گارڈز نے اہلکاروں سے ہاتھا پائی شروع کر دی۔ 92 نیوز نے ایف آئی آر کی کاپی حاصل کر لی۔ برمنگھم میں کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے زیر اہتمام کشمیری تنظیموں کا اہم اجلاس۔ 8 جولائی کو برہان مظفر وانی شہید کی برسی کے موقع پر بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے کا اعلان۔ پاکستانیوں کشمیری جماعتوں اوورسیز کمیونٹی سے مظاہرے میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ وسطی لندن میں پاکستانی پروفیشنلز کا اجلاس۔ دیار غیر میں پاکستانی وکلاء، اکاؤنٹنٹ، ڈاکٹرز اور دیگر پروفیشنلز کے باہمی روابط کے لیے نئی تنظیم انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن قائم۔ معروف سولیسٹر رضوان سلیہریہ چیئرمین نامزد۔ مانچسٹر میں مقامی وکلاء کا سالانہ گالا ڈنر۔ رکن پارلیمنٹ افضل خان، میئر کونسلر عابد چوہان اور دیگر سیاسی سماجی کمیونٹی شخصیات کی شرکت۔ مختلف ممالک کے فنکاروں نے فن کا جادو جگا کر تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ سانحہ اے پی ایس کے متاثرہ طالب علم احمد نواز نے ایک اور ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ پاکستان میں بچوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے کوششوں کا اعتراف۔ احمد نواز کو برطانوی پارلیمنٹ میں لیڈی ڈیانا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ممتاز برٹش پاکستانی کاروباری شخصیت اختر قریشی کی نماز جنازہ برینڈ کی مسجد کرکل وارڈ میں ادا کر دی گئی۔ کمیونٹی کی نمایاں سیاسی و سماجی شخصیات شریک۔ مقامی قبرستان میں سپرد خاک۔ لوٹن میں شفیع خان ٹرسٹ کے زیر اہتمام فنڈ ریزنگ تقریب۔ پاکستانی شاعر و ڈرامہ نگار وسیع شاہ اور لارڈ قربان حسین کی خصوصی شرکت۔ خواتین اور بچوں نے بھی کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ قربت ہمارے ذہن کا احساس ہی تو ہے، اور دل کے اگر وہ پاس ہے تو پاس ہی تو ہے۔ بریڈ فورڈ میں یارکشائر ادبی فورم کے زیر اہتمام خوبصورت محفل مشاعرہ۔ پاکستان، کینیڈا اور امریکہ سے آئے شعراء نے کلام پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ حاضرین محفل کی بھرپور داد۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر پاکستان زندہ باد کی گونج۔ ای یو پاک فیڈریشن یورپ اور تحریک کشمیر کے زیر اہتمام ریلیاں۔ پاک فوج کے حق میں نعرے بازی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی سخت مذمت۔ دبئی میں معروف ادارے اسپائر ورلڈ کا ہائی ٹیک ایڈوانٹیجز سمٹ۔ خوبصورت پرفارمنس پر پاکستانی گلوکارہ آئمہ بیگ اور سونیا مجید کے لیے خصوصی ایوارڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں یاسر رشید۔
और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में बौछार की सूरत हाल है। आपको बताएं कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त बौछार की सूरत हाल है। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से सियासी माहौल में तपश मजीद बढ़ चुकी है। हीरोइन बरामदगी केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर जेल जा चुके हैं। मुलजिम ने अपनी गिरफ्तारी को जुल्म करार दे दिया है। हेरोइन बरामदगी केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को लाहौर की अदालत ने 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। केस की समाअत जुडिशियल मजिस्ट्रेट अहमद वकास ने की। कमरे अदालत में ANF और नून लीग के वकला में धक्कम बेल हुई, लेकिन वकला राना सनाउल्लाह के हक में नारे लगाते रहे। राना सनाउल्लाह ने अहाते अदालत में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुल्म है और जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। ये जुल्म है और जुल्म की हुकूमत इधर परे होना कुर्सी है, इधर कुर्सी है। शर्म आनी चाहिए उसे। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने लीगी रहनुमा असगर अली उर्फ भोला गुज्जर कत्ल केस की असर-ए-नौ तफ्तीश का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक SP ओहदे के ऑफिसर भोला गुज्जर केस की फाइल लाहौर चलेगी। बैरून मुल्क मुकीम साबिक SHO फरूख वहीद को पाकिस्तान लाया जाएगा। राना सनाउल्लाह से ताल्लुक रखने वाले पुलिस अफसरान से भी तफ्तीश में तवक्के है। हमलो अमान के पेश नज़र फैसलाबाद पुलिस ने राना सनाउल्लाह के करीबी साथी साबिक MP शेख एजाज को गिरफ्तार कर लिया। शेख एजाज को उनके घर से हिरासत में लिया गया। नाज़रीन, रूस की ज़मीनी अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल ओलेग सेलेकोव ने GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रूस की ज़मीनी अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल ओलेग ने GHQ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी के चाको चुबंद दस्ते ने मेहमान को एजाजी सलामी पेश की। रूस की ज़मीनी अफवाज के कमांडर इन चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। रूसी कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी और तरबियती ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना है पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में वुसअत से खत्ते में मौशी खुशहाली आएगी। पाकिस्तान खत्ते में रब्त व ताउन का ख्वाह है। फ्रांस के सेक्रेटरी जनरल नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी ने भी GHQ का दौरा किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बर्मिंघम में कुल जमाती कश्मीर राबिता कमेटी के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरी तंजीमों का अहम इजलास हुआ। इजलास में 8 जुलाई को बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद की बरसी के मौके पर भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे के इंतजामात का जायजा लिया गया। तमाम कश्मीरी जमातों ने एहतजाज में इत्तेहाद और यकजहती का अमली सबूत देने का अहद किया। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। बरतानिया में मुजाहिद कश्मीर बुरहान वानी शहीद की तीसरी बरसी पर कश्मीरी तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर एहतजाज का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में 16 जमातों पर मुश्तमिल कुल जमाती कश्मीर राब्ता कमेटी का इजलास बर्मिंघम की गौसिया मस्जिद कम्युनिटी हॉल में हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि 8 जुलाई को बुरहान वानी शहीद की बरसी के मौके पर मुजाहिरे को कामयाब बनाने के लिए तमाम तंजीमें अपना भरपूर किरदार अदा करें। जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के फॉरेन सेक्रेटरी जनरल जफर इकबाल एडवोकेट, PTI आज़ाद कश्मीर के चौधरी खादिम हुसैन और दीगर ने तमाम ओवरसीज कश्मीरियों से अपील की है कि वो 8 जुलाई को लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरे में लाजमी शिरकत करें और मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बने। जिस तरह कहते हैं कि खून हमेशा रंग लाता है, तो हमें इस पर यकीन भी है और ईमान भी है कि इंशाल्लाह कश्मीरी आज़ाद होंगे और कश्मीर भी आज़ाद। इंशाल्लाह जो मुजाहरा हम लंदन में कर रहे हैं वो इंशाल्लाह कश्मीरियों की आज़ादी के लिए एक दिन वो सूरज जरूर तुलू होगा, जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं और इंशाल्लाह जरूर आज़ाद होगा। और हम भी इंशाल्लाह किसी कुर्बानी से दरेग नहीं देंगे। लंदन बतानी यूरोप में इंटरनेशनल कमेटी के सामने जो भी काम कर रहे हैं वो करेंगे इंशाल्लाह, और करते रहेंगे और कंटिन्यू देंगे। हम कश्मीरी शहादा के साथ हैं और बुरहान वानी की जो कुर्बानी है वो रायगा नहीं जाएगी, और इसके लिए हम लंदन में जो मुजाहरा कर रहे हैं
मैं सभी लोगों से इल्तमास करता हूँ कि वो उसमें शिरकत फरमा कर जो है वो शहीदों से हज़ार यकजहती फरमाएं। बुरहान वानी की शहादत के सिलसिले में हम इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर भरपूर मुजाहरा करेंगे और मुश्तरका तौर पर कश्मीर राब्ता कमेटी के प्लेटफॉर्म से करेंगे। तो मैं मुख्तलिफ तंजीमों से कश्मीर से दर्द दिल रखने वाले आपने जो यहाँ पर लीडरान इकरामी हैं उनसे आपने जो कश्मीरी जितनी अपनी कम्युनिटी है डिस्प्यूरा है उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपने 8 तारीख को 1 बजे इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर पहुँचकर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराना। शहीद बुरहान वानी के जो शहादत है उसके हवाले से हम एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त कश्मीरी वहाँ मुजाहरा करने जा रहे हैं। तो तमाम कश्मीरियों से पुरजोर अपील है कि इस मुजाहरे में जोग शामिल होकर बुरहान वानी की शहादत में आप शिरकत करें और ये बात साबित करें कि कश्मीरी उस वक्त तक इंशाल्लाह अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे जब तक उन्हें अपना हक खुद आराधियत नहीं मिलेगा। बुरहान वानी की शहादत के सिलसिले में इंडियन एम्बेसी के सामने मुजाहरा होगा। तमाम भाइयों से, तमाम जो मुसलमान हैं जो कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ हमदर्दी रखते हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि प्लीज़ 8 जुलाई को तमाम काम छोड़कर इस मुजाहरे को कामयाब करें। इंडियन हाई कमीशन के बाहर एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ इस एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हूँ और मजलूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करें। जो है वो पेश करके मसला कश्मीर को एक नई रूपों की है। तो इंशाअल्लाह ताला जब तक एक कश्मीरी भी जिंदा है और भारतीय अफवाज के दरिंदों से इंशाअल्लाह लड़ते रहेंगे और जब तक भी एक दरिंदा मौजूद है इंशाअल्लाह हम हिम्मत नहीं हारेंगे। गर्दोगात शहीद वानी जिन्होंने वतन अजीज कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की है, ये 3री बरसी है। हम उसको खराज अकीदत पेश करने के लिए कश्मीर कमेटी ने ये प्रोग्राम बनाया है कि 8 जुलाई को इंडियन एम्बेसी के सामने हम भरपूर मुजाहरा करेंगे। इजलास में ये फैसला भी किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के हेड ऑफिस के सामने भी मुजाहरों के अलावा दस्तावेजी यादाश्त भी पेश की जाएगी ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके। रिपोर्टिंग टीम के हमरा अबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। वस्ती लंदन के मुकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स का इजलास मुनक्किद किया गया और नई तंजीम की बुनियाद रखी गई। मारूफ सॉलिसिटर रिजवान सुलेरिया को इंटरनेशनल बिजनेस फोरम IBPC चेयरमैन और आसिम यूसुफ को जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के क़याम का मकसद दियार गैर में रहने वाले प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी हजरात के लिए सहूलियात का एहतमाम करना है। दियार गैर में पाकिस्तानी जहां तरह तरह के मसाइल का शिकार हैं, वहीं कारोबारी तबके को भी आए रोज नित नए चैलेंजेस का सामना रहता है। यही वजह है कि दियार गैर में बसने वाले वकला, अकाउंटेंट, डॉक्टर्स और दीगर पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स ने नई तंजीम को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। इन हालात में किसी ऐसे प्लेटफॉर्म का क़याम जहाँ प्रोफेशनल कारोबारी हजरात अपनी नेटवर्किंग कर सकें, किसी नेमत से कम नहीं। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के फाउंडर चेयरमैन रिजवान सुलेरिया ने कहा कि वो तमाम ममालिक में अपनी तंजीम के चैप्टर्स का आगाज कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी आसिम यूसुफ का इस मौके पर कहना था कि वो हुकूमत पाकिस्तान के आला अफसरान के साथ भी राब्ते में हैं और बहुत जल्द IBPC एक मुफीद और मौसर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म बनकर अपना किरदार अदा करना शुरू कर देगी। चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ फाइनेंस्ड है तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसके जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनकी शफाफियत को इंश्योर किया जाए, रिपोर्टिंग और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया जाए और हम फाइनेंशियल मैटर की ट्रांसपेरेंसी के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स को हायर करेंगे जो कि ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो साफ और शफाफ हैं। आज हम लोगों के लिए एक बहुत खुशी का दिन है क्योंकि इससे पहले UK में कोई ऐसा फोरम मौजूद नहीं था जो कि बिज़नेस को और प्रोफेशनल अफराद को एक प्लेटफॉर्म में जाके जमा कर लेता। तो अब हम जो है ना एक प्रोटेक्शन देंगे, प्रमोशन देंगे, सपोर्ट देंगे ऑल बिजनेस पीपल और प्रोफेशनल पीपल एंड विल ब्रिंग देम टुगेदर इन टू द सेम अम्ब्रेला। इससे पाकिस्तान बेनिफिट होगा, हमारी कम्युनिटी बेनिफिट होगी, प्रोफेशन ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा। मुझे जिस लिए टास्क दिया गया है वो इंटरनेशनल बिजनेस का दिया गया है क्योंकि मेरे एक प्रोफेशन के साथ रिलेट करता है और हम इसी में यही चाहते हैं कि ये जनरल प्लेटफॉर्म है, ये कोई एक स्पेशलिस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके अंदर हम एक कम्युनिटी को कवर करेंगे। इसके अंदर हम
जनरल कम्युनिटी को ओवरऑल कवर करेंगे और जो जिस फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा उसका हम ऑन बोर्ड लेंगे। बेसिकली इस फॉर्म का जो मेन जो टारगेट है, जो गोल है, वो हमारा ये है कि तमाम तरह हम पाकिस्तानियों को साथ लेके चलें जिनको कोई मुश्किलात होती है। और बहुत सी तंजीमें इससे पहले भी हैं, लेकिन उन तंजीमों से हट के हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, जो आवाम के लिए अच्छा होगा, हम पूरी तरह ये पूरी टीम मिल के पाकिस्तान के लिए हम कुछ करने के लिए तैयार। और इंशाल्लाह ये आज बुनियाद रख दी गई है और इस बुनियाद को आगे लेके चलेंगे। और आप सब से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, आप लोगों ने हमसे सवाल भी करने हैं, हमने जवाब भी देने हैं और इंशाल्लाह इसमें हर तरह के पाकिस्तान का नाम ऊपर जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में जहाँ भी रहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, इसके अंदर तमाम बिजनेसेस जो हैं ओवरसीज़ के उनको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, उनके मसाइल को हुकूमती अवानों तक पहुँचाना और जो भी ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसले हैं उनको उजागर करना। इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल का क़याम आज अमल में लाया गया है। इसका बुनियादी मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और उसके साथ साथ पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाना है। हम ये समझते हैं कि बहुत सारी तंजीमें इससे पहले काम कर रही थी, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल इसलिए आज से मुनफरिद है कि इसमें पूरी दुनिया से इसके चैप्टर बनाए जाएंगे। इसमें पूरी दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाएगा। मुझे एज ए वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डिवीज़न मुंतखब किया गया है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करूं और उनके लिए जो भी हो सके, जितनी हेल्प और सपोर्ट हो सके कर सकूं। नायब सदर आमिर मुश्ताक का इस मौके पर कहना था कि दोनों ममालिक के प्रोफेशनल्स के दरमियान ऐसे रवाबत से मुल्क में सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा। फाइनेंस सेक्रेटरी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने भी IBPC को ओवरसीज में कारोबारी तबके के लिए खुशाइंद करार दिया। इस मौके पर दीगर शुरका ने भी तंजीम के क़याम को बेहद सराहा। तंजीम की इब्तदाई तकरीब में पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम सहाफ़ी और TV चैनल्स के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन, UK। मैनचेस्टर के मुकामी वकला की जानिब से मैनचेस्टर की कम्युनिटी के एजाज़ में मुकामी हॉल में एक बड़े गाला डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब का मजीद अहवाल बता रहे मैनचेस्टर से नुमाइंदा 92 न्यूज़ एतजाज़ आसिम चौधरी इस रिपोर्ट में। सालाना गाला डिनर का एहतमाम मैनचेस्टर की मुकामी वकला की फर्म की जानिब से किया गया, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल खान, मैनचेस्टर सिटी के मेयर कौंसलर आबिद चौहान, साबिक मेयर मैनचेस्टर नईमुल हसन, साबिक मेयर रोशडेल मोहम्मद जमान, कौंसलर शौकत अली, कौंसलर सुल्तान समेत समाजी रहनुमा खालिद परवेज ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर तमाम मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाली कम्युनिटी को मदऊ किया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मैनचेस्टर एक मल्टी कल्चरल शहर है जहां मुख्तलिफ कल्चर और मज़हब के मानने वाले बसते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स हमें आपस में न सिर्फ मिल बैठने का मौका मुहैया करते हैं, बल्कि हमें एक दूसरे का कल्चर भी समझने में आसानी होती है। बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा करने चाहिए इस तरह के इवेंट्स, स्पेशली इस तरह ये बाहर मुल्कों में अपने अपने लोग मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी होती है अपने बहुत सारे लोगों को देख के, डिफरेंट कम्युनिटी के और मुख्तलिफ जो अपने कल्चर के लोग यहाँ आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के प्रोग्रामों में आके मिलना गिलना हमारे ताल्लुक भी बढ़ते हैं और इसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। इसीलिए मैनचेस्टर के अंदर 200 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं और हमारी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ भी बहुत अच्छी है। तो यही तरीका होता है जिसको बेहतर रखने के लिए। सब सोलिसिटर्स न सिर्फ मैनचेस्टर बल्कि पूरे UK की एक जानी पहचानी लीगल फर्म है। आज का ईद गाला डिनर हमने इसलिए अरेंज किया है जिसमें हमने कम्युनिटीज़ के तमाम मज़ाहिब, जिसमें हिंदूज़, ज्यूज़, मुसलमान, क्रिश्चियंस, उनको मदऊ किया हुआ है और उनकी कसीर तादाद शिरकत कर रही है। प्रोग्राम है, ऑल क्रेडिट जाता है सब सोलिसिटर वालों को, इसमें सारी कम्युनिटी आगे है और ये शो करता है कि हम लोग कितने खुश हैं और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कितने आगे हैं। Absolutely amazing. It's lots of entertainment and we're really pleased to be here. Yeah, it's wonderful. To me, it's really lovely for us to be here performing at the Eid Gala dinner at the Sheridan Suite. And what's even more beautiful is to see all the different cultures and communities coming together to celebrate. खूबसूरत तकरीब में मुख्तलिफ मुमालिक के फनकारों ने अपने फन का भरपूर मुजाहरा किया और हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब के मेजबान मारूफ सोलिसिटर बिलाल बाबर और दीगर ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि वो हमेशा हर लिहाज से कम्युनिटी की खिदमत के लिए हमावक्त तैयार रहते हैं। खुशी की बात है कि आज यहाँ पे जो मैनचेस्टर के अंदर बड़ी रिनोन्ड सोलिसिटर फर्म बास सोलिसिटर ने गाला डिनर का एहतमाम किया, जिसमें बहुत सारी कम्युनिटी ने शिरकत किया। इस किस्म के प्रोग्राम से जो होता है कि हमें मिल बैठ के अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो शेयर करते हैं और इस किस्म से जो होता है कि हमारी जो कम्युनिटी है उनके अंदर कम्युनिटी कोहेजन का वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन
होने का मौका मिलता है। उनका मजीद कहना था कि इस तरह की तफरीही और फलाही तकरीबात मुनक्कद करने से कम्युनिटी को बेहतर अंदाज में अपनी खिदमात सरअंजाम दे सकते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राजा वाजिद के साथ एतजाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। सानेहा एपीएस में जिंदा बचने के बाद लंदन में कई रोज तक मौत और हयात की कशमकश में रहने वाले तालिब इल्म अहमद नवाज को लंदन में डियाना अवार्ड से नवाजा गया। अहमद नवाज को ये अवार्ड पाकिस्तान में बच्चों को तालीम के हवाले से जारी खिदमात के एतराफ में दिया गया। बरतानवी पार्लियामेंट में लेडी डियाना अवार्ड देने की तकरीब हुई। तकरीब में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के गाजी तालिब इल्म अहमद नवाज को नौजवानों की तालीम के हवाले से उनकी खदमात पर डियाना अवार्ड से नवाजा गया और वो लेडी डियाना अवार्ड लेने वाले पहले पाकिस्तानी भी बन गए। अहमद नवाज को बरतानिया और यूरोप का यंग पर्सन ऑफ द ईयर, एशिया इंस्पायरेशन अवार्ड और दर्जनों दीगर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। लंदन में 2 रोज पहले इंतकाल कर जाने वाले मुमताज ब्रिटिश पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत अख्तर कुरैशी की नमाज जनाजा ब्रेंट की मस्जिद गर्कलवुड में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कसीर तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी और रिश्तेदारों, दोस्तों और दीगर कारोबारी हजरात ने शिरकत की। इस मौके पर मकामी सियासी तंजीमों और लोकल पार्टियों के अहदेदार और दीगर कम्युनिटी शख्सियात भी बड़ी तादाद में मौजूद थीं। अख्तर कुरैशी के इंतकाल की खबर सुनकर पाकिस्तानी कम्युनिटी में दुख की लहर दौड़ गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मरहूम के इंतकाल पर गहरे गम और रंज का इजहार किया। मरहूम की तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की गई। लुटन के मुकामी हॉल में शफी खान ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम फंड रेजिंग के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में पाकिस्तान के नामवर शायर, ड्रामा निगार और मशहूर टीवी एंकर पर्सन वसी शाह और लॉर्ड्स कुर्बान ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात सफ्तर बुखारी की रिपोर्ट में। ल्यूटन के मकामी हाल में होने वाली फंड रेजिंग तकरीब के रूह रवां मारूफ पाकिस्तानी शायर वसी शाह थे, जिन्होंने अपनी दिलरुबा शायरी से शुरा को खूब महसूस किया। जहां भर में वही नेक नाम तुझसे है, ऐ मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, तुम्ही से सुबह मेरी शाम तुमसे। क्या बात है। इस मौके पर डॉक्टर शौकत, शफीकुर रहमान, रफीक मुगल और बरतानिया भर के मुख्तलिफ शहरों से ख़वातीन हजरात और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और फंड रेजिंग में भरपूर हिस्सा लिया। शुरा का कहना था कि शफी खान ट्रस्ट की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है, जो अपने मुल्क से दूर होकर भी अपनों का दर्द महसूस करती है। एक बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज था, सारे ऑर्गेनाइजर का बहुत शुक्रिया और जो मेहमान खुसूसी थे वसी शाह, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये एक अच्छी कॉज के लिए किया गया है। हमारी जो जितनी भी रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे एम्बुलेंस, एजुकेशन और जितने भी गरीब लोग हैं उनको हेल्प करते हैं। इस कोशिश में कि ये जितनी भी फंड रेजिंग है, ये जितने भी लोग ने हमारे साथ मोहब्बत की है, ये इनकी मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी और हम एवरी डे उसमें मोर इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। कंट्रीब्यूट किया और इन्होंने समझा कि इसका कोर्स क्या और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो अल्लाह करे कि आगे भी ऐसे ही ये चलता रहे और जो इनकी सेल्फलेस कोज है उसको आगे बढ़ाने में हमारी कम्युनिटी जो यहाँ पर है वो मदद करे। मैं सोचता हूँ कि लिविंग इन यूके हम लोगों को इसको सपोर्ट करना चाहिए और उन लोगों का हक बनता है कि हम लोग वापस कुछ थोड़ा सा अपना हिस्सा डालें और इसको प्रमोट करें। और इनका जो आगे प्लान है एक और मज़ीद फ़ाल किस्म की एम्बुलेंस, उसके लिए फ़ंड्स जो इकट्ठे कर रहे हैं, उसमें वी नीड टू प्ले अ पॉजिटिव रोल। चैरिटी के इस काम में, फलाह के इस काम में, इंसानियत के इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस ट्रस्ट को अपना ट्रस्ट समझें, क्योंकि ये आपके और मेरी, हम सब के लोगों की ज़रूरत है, हम सब की, हमारे इलाके की ज़रूरत है और मैं, मेरे साथी, हमारी सारी टीम इसके साथ है। वसी शाह का कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उन तमाम अहबाब को अजर अजीम अता फरमाए जो दुखी इंसानियत की खिदमत का ये काम जारी रखे हुए हैं। शफी खान ट्रस्ट के हवाले से जो काम इन्होंने किया उसमें बड़ी नेकनीयती है, बड़ा खुलूस है। ये खुलूस ही है कि ये अब आगे की तरफ देख रहे हैं और अपने काम को इस हवाले से बढ़ाना चाह रहे हैं। ये मैं समझता हूँ इनका फ़र्ज़ भी है और ये इनको अल्लाह ताला की रज़ा भी है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि उसकी रज़ा के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती है और ये इनको अता भी है कि अल्लाह ताला ने इनके दिल में ये ख्याल जो है वो डाला है। लुटन के हवाले से आप तो बिल्कुल ऐसे लगता है मुझे कभी कभी कि लुटन में मुशायरा पढ़ना ऐसी है जैसे लाहौर में मुशायरा पढ़ रहा हूँ आदमी, क्योंकि बहुत ही यानी कि मेरा ख्याल था कि बर्मिंघम में और मैनचेस्टर में और लंदन में पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन लुटन तो बिल्कुल ही आपको लाहौर की फ़ील देता है। और जिस तरीके से आज भी आपने देखा कि जैसे हॉल फुल था, जिस तरह से लोगों ने सुना आखिरी वक्त तक, और अभी हमने खाने की वजह से थोड़ा सा उसको मुख्तसर किया, लेकिन लोग जो हैं फिर भी सुन रहे थे।
इस मौके पर बरतानवी रुकन पार्लियामेंट लॉर्ड कुर्बान का कहना था कि वतन की मोहब्बत असल ईमान की निशानी है। ओवरसीज पाकिस्तानी को चाहिए कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गुरबा और मसाकीन के लिए डाल दें ताकि उनकी आखिरत संवर जाए। चैरिटेबल वर्क यूँ तो सारी दुनिया में होता है और बरतानिया में बसने वाले हमारे लोग जो हैं वो चैरिटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं और उनके लिए जहाँ हर चैरिटी में हिस्सा लेना अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि हमारे अपने इलाके में पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर है, जहाँ जहाँ चैरिटेबल कामों की ज़रूरत है उसकी जो मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। इस हवाले से शफी खान ट्रस्ट जो है वो पुंछ के इलाके में बहुत ही अच्छी खिदमात जो है अंजाम देने के लिए कायम किया गया है, जिसमें ख़ास करके दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में एम्बुलेंस सर्विस का जो इजरा है ये बहुत ही अच्छा कदम है। शुरा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों में ऐसे फलाही कामों की अशद ज़रूरत है, जबकि बरतानिया में बसने वाले अहबाब को इन ज़रूरतमंदों की मदद करने में अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। सफ्तर बुखारी, 92 न्यूज़, ल्यूटन। ब्रेडफोर्ड में यॉर्कशायर अदबी फोरम के ज़ेरे एहतमाम मकामी हॉल में खूबसूरत महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया के अलावा अमरीका, कनाडा और पाकिस्तान से शुरा कराम ने शिरकत की और अपने शानदार कलाम से हाजरीन को महसूस किया। शुरका ने दिल खोल कर दाद दी। तफसीलात के लिए देखिए वकार बाबर की यह रिपोर्ट। गुर्बत हमारे ज़हन का एहसास ही तो है और दिल के अगर वो पास है तो पास ही तो है। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में यॉर्कशायर अदबी फोरम के ज़ेरे एहतमाम एक मकामी हाल में मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया के अलावा अमरीका, कनाडा और पाकिस्तान से बड़ी तादाद में शुअरा ने शिरकत की और अपने खूबसूरत कलाम पेश करने पर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। इस मुशायरे में फातिमा ज़ारा जबीन, खालिदा उज़्मा, एजाज तवक्कल, फरद परवीन, आसफ तोकीर, जवाद शेख, डॉक्टर निगत इफ्तिखार, डॉक्टर साकब, कैसर जैदी और दीगर ने अपने कलाम पेश किए। दर्द बेकार थोड़ी होता है, जब हर बार थोड़ी होता है, मिर्जा दर्द बेकार थोड़ी होता है, जब हर बार थोड़ी होता है। हम जिसे प्यार जान लेते हैं, जान वो प्यार थोड़ी होता है। स्टेज सेक्रेटरी के फ्राइज इश्तियाक मीर और गजल अंसारी ने सर अंजाम दिए। हाजरीन का कहना था कि दियारे गैर में इस किस्म के अदबी महफिलों के इनेकाद से जहां उर्दू अदब को तरवीज मिलती है, वहीं एक दूसरे के साथ मिल बैठने के मौके भी मिलते हैं। लिटरेचर फेस्टिवल के ताउन के साथ एक इंटरनेशनल मुशायरा कर रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत हलचल है, बहुत रौनक हुई हुई है और ऐसे प्रोग्राम्स होना बहुत ज़रूरी। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों तक कैसे उर्दू पहुँचाएँ। ये बहुत बुनियादी सवाल है। इस तरह के प्रोग्राम इसलिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो लोग जो उर्दू जानते हैं वो नहीं आते, बल्कि बच्चे भी आते हैं और वो जाके मुशायरे में, देखिए मुशायरा उर्दू ज़ुबान की सकाफ़त और उर्दू ज़ुबान की तहज़ीब और तारीख़ का बुनियादी जुज़्व है। मुशायरा अटेंड मैंने अभी किया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्केल पे हुआ हुआ है और इतने सारे पाकिस्तानी इस ब्रैडफोर्ड में मुझे देख के बहुत खुशी हुई है कि पाकिस्तानी अपने कल्चर को और अदब को समझते हैं। इतना ज़बरदस्त किस्म का अदबी जो है एक मुशायरा मुनक्किद किया गया। लोगों का जो ज़ौक़ व शौक़ है और सारे हमारा जो पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता तबका है जो पाकिस्तान से बाहर है, वो इस ज़बान के हवाले से किस दुनिया भर से आए हुए मेहमान शुअरा का कहना था कि दियारे गैर में इस तरह की अदबी महफिलें सकाफ़त और ज़ुबान को उजागर करने में अहम किरदार अदा करती हैं और नौजवान नस्ल के लिए बेहतरीन असासा हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़। बरतानिया में मौसम गर्मा की शुरू होते ही मुख्तलिफ ममालिक के रिवायती और सकाफती मेलों का आगाज हो गया। ऐसा ही एक शानदार मेला बरतानिया के शिमाल में वाक़ शहर मिल्टन केन्स में सजाया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। मौसम गर्मा की आगाज के साथ ही बरतानिया मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती रंगों में ढल जाता है। बरतानिया में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तारकीन वतन की अपने अपने ममालिक के मुताबिक सकाफती सरगर्मियों का आगाज मेलों और फन फेयर्स की शक्ल में होता है। बरतानिया भर के मुख्तलिफ शहरों में एशियाई मेलों का इनेकाद जून के वस्त से लेकर अगस्त के आखिर तक जारी रहता है। इस सिलसिले में लंदन से तकरीबन 50 मील दूर अमरीकी तर्ज पर आबाद होने वाले मिल्टन केन्स में 2 रोजा ईद फेस्टिवल के नाम से मेला मुनाकिद हुआ, जिसमें यहाँ मुकीम मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ खेलों का एहतमाम किया गया था, जबकि दर्जनों एशियाई खानों, एशियाई मलबूसात और मशरक़ वुस्ता के खानों के
के स्टॉल्स लगाए गए थे। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले गुलकारों ने अपने फन का भी मुजाहरा किया। ईद मेले के शुरका ने म्यूजिक पर अपने अपने इलाकाई रक्स भी पेश किए, जिन्हें खूब सराहा गया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कामयाब ना हो सकी। मुहिब वतन पश्तूनों ने PTM के चंद हवारियों की जानिब से जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने मुजाहरे की कोशिश नाकाम बना दी। तफसीलात असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप की हमायत के साथ पश्तून ऑर्गेनाइजेशन ने अक़वाम मुत्तहिदा के जिनेवा दफ्तर के सामने पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे को न सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि हुब्बुल वतनी से सरशार पाकिस्तानियों ने इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर EU पाक फेडरेशन यूरोप के चेयरमैन चौधरी परवेज इकबाल लोहसर का कहना था कि मंजूर पश्तीन भारत और अफगान एजेंसियों की इमा पर पश्तूनों को गुमराह कर रहा है। PTM की जानिब से यूरोप में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसे हकीकी पश्तूनों ने नाकाम बना दिया। पाकिस्तान और पाकिस्तान हमेशा रहेगी, लेकिन तेरा नामो निशान नहीं रहेगा। जो मातल फरोश है, जो माँ बेचता है, उसका हम पीछा करेंगे इंशाअल्लाह। जब तक दम में दम है, ये जो धोनी चलती है, पीछे वर्दी है। पश्तून ऑर्गेनाइजेशन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ जहां भी साजिश की गई, पश्तून उसे नाकाम बनाकर गुमराह और बिके हुए अनासर को बेनकाब करेंगे। तहरीक कश्मीर इटली के तहत कश्मीरी अवाम के खिलाफ भारतीय मजालिम पर आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाए और भारतीय जुल्म बर्बरियत बंद कराने का मुतालिबा किया। देखिए इस रिपोर्ट में। स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में वाक़े अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर के सामने तहरीक कश्मीर इटली की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें यूरोप भर से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मुजाहरे में आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी परवेज अशरफ, तहरीक कश्मीर इटली के रहनुमा मोहम्मद खलील बाट, चौधरी अजमल, समाजी शख्सियात खालिद चीमा, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इटली के सदर चौधरी ताहिर महमूद और दीगर शरीक हुए। मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीर में होने वाले मजालिम और आलमी ज़मीर झंझोड़ने की जरूरत है। कश्मीर पर आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मंजूर होने वाली करारदादों पर अमल दरामद कराए। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत को ये बावर करा देना चाहता हूँ कि हम अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ, हम अपनी माओं और बहनों के साथ उस वक्त तक हज़ारे यकजहती को जारी रखेंगे और जो तुम जुल्म रवा रखे हुए उसको बैरुल-अक़वामी तौर पर बैरुल-अक़वामी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से हमारी अपील है कि जो फैसला आपने किया हुआ, जो करारदादे पास है, उन पर अमल दरामद किया जाए। और इंडिया को हम मैसेज देना चाहते हैं कि इंडिया जो इटली से पाकिस्तानी है, जो इटली से कश्मीरी है, जो इटली से मुसलमान है, वो कश्मीरियों के हकूक़ के लिए जंग जारी रखेंगे और इंडिया को आराम से नहीं रहने देंगे जब तक कश्मीरियों को हकूक़ नहीं मिल जाते। पुरज़ोर अपील करता हूँ कि जो मजलूम कश्मीरियों के साथ जितनी बड़ा जुल्म इंडिया कर रहा है, इससे बड़ा टेररिस्ट दुनिया में नहीं है। ये इंडिया हमें जो धमकियां देता है, हम इंशाल्लाह इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आज 70 साल से कश्मीर के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी हो रही है, जिस तरह पैलेट गन के जरिए हमारे नौजवानों को अंधा किया जा रहा है, जिस तरह नौजवानों को गाड़ियों के आगे बंद के उनके लाशों को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि आज हलाकू और चंगेज खान की जो ब्रुटैलिटी, उसको भी मोदी सरकार ने भारत के अंदर शर्मिंदा कर दिया है। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि निहत्थे कश्मीरियों को पैलेट गन्स के साथ निशाना बनाकर माजूर किया जा रहा है। जब तक कश्मीर का मसला कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल नहीं हो जाता, दुनिया में अमन कायम नहीं किया जा सकता। 70 साल से जो कश्मीरियों के ऊपर इंडिया में जुल्म कर रहा है, नरेंद्र मोदी कल भी दहशतगर्द था, नरेंद्र मोदी आज भी दहशतगर्द है। ये मैं आपने नहीं कहा, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने
इसको दहशतगर्द कहा था। अभी आपने मेरे नारों का जवाब देना है। We want, we want, है हक हमारा। ये बच्चे मांगे, ये बूढ़े मांगे, ये बूढ़े मांगे। टेररिस्ट, टेररिस्ट, इंडिया टेररिस्ट। इस मौके पर कश्मीरी अवाम के हक के हुत इरादियत के लिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, गो इंडिया गो, कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे भी लगाए गए। मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब की जानिब से राना सनाउल्लाह खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी अहदेदारों की जानिब से मजम्मती कॉन्फ्रेंस की गई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमैर अली की ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शेख सईद ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत इदारों को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। कार्रवाइयाँ हो रही हैं मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये बंद होनी चाहिए। राना साहब पंजाब के सदर हैं और मेरा ख्याल है कि जो राना साहब बातें करते हैं वो सच्ची बातें करते हैं और सच्ची बातों के नतीजे में उनको पकड़ा गया और राना साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं। और जो सिलेक्टेड जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, ये जो इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं ये सरासर गलत है और इदारों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और स्पेशली मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़। और हमारे कायद में मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की गिरफ़्तारी भी है, जबकि उन पर कोई इल्ज़ाम अब तक साबित नहीं हो चुका। जब इल्ज़ाम साबित हो जाए तो गिरफ़्तारी भी बनती है, तो उसकी भी हम शदीद मजम्मत करते हैं। मुस्लिम लीग नून रियाज के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी सज्जाद, वकार नसीम वामिक और दीगर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत इंतकामी सियासत के जरिए अपनी नाअहली को छुपा रही है और अपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार करके मुल्की सूरत हाल को ख़राब कर रही है। राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी है वो इस बात का सबूत है कि हम में से किसी पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका अब तक, और ये ओछे हथकंडे सिर्फ आवाम को एक गुमराही की तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो लीडर हैं, वो हमारे लिए असासा है, कौम के लिए असासा है और हम उनके लिए तन मन धन सब कुर्बान करने को तैयार बैठे। अवाम जो है वो इस वक्त इन सब मामलात को बड़ा क्लोजली देख रही है और इस पर ज़रूर एक अवामी रिएक्शन जो है वो सामने आएगा और मुस्लिम लीग के जो दीगर अकाबरीन पर भी इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो टारगेट इसमें किया जा रहा है उनको, मेरा ख्याल है हुकूमत को इन अपनी इस पॉलिसी पर नज़रसानी करनी होगी। मुकर्रीन ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इदारे हुकूमती दबाव का शिकार हो चुके हैं, जिससे सियासी बहरान जन्म ले रहा है। दुबई में मुनक्किदा 32वीं सालाना एस्पायर वर्ल्ड हाईटेक एडवांटेजेस समिट में मारूफ गुलकारा आयमा बेग और यूएई में मुकीम पाकिस्तानी गुलकारा सोनिया मजीद को खुसूसी विमेन एस्पायरिंग अवार्ड से नवाजा गया। सैयद मुजस्सिर की रिपोर्ट देखिए। एस्पायर वर्ल्ड की जानब से पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की गुलकारा आयमा बेग और यूएई में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा सोनिया मजीद को खसूसी वुमेन एस्पायरिंग अवार्ड दिया गया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में आयमा बेग ने अवार्ड मिलने पर खुशी का इजहार किया। अपने नए गाने के हवाले से उन्होंने कहा कि ये इनके फैंस के लिए सरप्राइज होगा। बिल्कुल शूटिंग हो गई है और बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह। 2-3 गाने और भी किए हैं, तो काफ़ी सारे गाने आने वाले हैं व्यूअर्स के लिए और मैं खुद भी नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ कि कैसे लगेंगे सबको और भी बहुत कुछ एक्साइटिंग और डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ रहा है, सो आई एम एक्साइटेड। मैं सबको हर बार यही कहती हूँ, कोई भी मुझसे मैसेज का कहता है तो आई लव माई फैंस और मैं आज जो भी हूँ सब उनकी वजह से हूँ और उनके लिए ढेर सारा प्यार जिन दुनिया में कहीं पे भी वो मौजूद हैं। आई लव देम ऑल। थैंक यू। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड। आई नेवर थॉट दैट आई वुड बी स्टैंडिंग हियर एंड अचीविंग दिस अवार्ड एंड सिटिंग विद अलॉन्ग विद अमेजिंग पीपल। सो या इट्स एन ऑनर फॉर मी। I feel great. अक़वाम मुत्तहिदा की खैर सगाली सफ़ीर और यूएई में मुकीम मारूफ गुलकारा सोनिया मजीद ने अपने नए आने वाले एल्बम पर बात की और अवार्ड मिलने पर एस्पायर वर्ल्ड इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन इवेंट वालों के जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतना सराहा और मुझे अवार्ड से नवाजा। और आज मैं जहाँ भी हूँ ये आपके वालिदैन की वजह से होता है, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं वो मेरी एल्बम रिलीज़ होने वाली है, उसका नाम है डिवोशन, जो ईद के बाद रिलीज़ होगी और वो मैं डेडिकेट करती हूँ ह्यूमैनिटी को, डिवोट करती हूँ। म्यूज़िक यूनाइट करता है
म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। तकरीब में आयमा बेग ने अवार्ड वसूल करने के साथ साथ अपने मशहूर गाने मलंग और बाजी के बोल सुनाकर खूब दाद वसूल की। शुरा ने पाकिस्तानी गुलकारा को खूबसूरत परफॉर्मेंस पर दिल खोल कर दाद दी। कैमरा टीम के हमरा सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़ UAE। बाजी लग जावे ए हो मसलम का बुड़ाए ओए हो मसलम का बुड़ाए बाएं सिर दी बाजी लग जावे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। सरफराज अहमद ने कहा, इंग्लैंड के बॉलर्स ने भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की, सेमीफाइनल में जो भी टीम आएगी उसे खुशी से खेलेंगे। लंदन में ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी कप्तान ने मजीद क्या कहा, देखिए। देखें, ऑब्वियसली हम भी बड़ा पुर उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो हमारा आखिरी मैच है, जिस तरीके से हमने 3 मैच एज ए टीम बहुत अच्छा खेले, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आखिरी मैच बहुत अच्छा खेलें। सरफराज, पिछले 2 साल से पाकिस्तान 2 मैच लगातार नहीं जीती थी, लेकिन आपने 3 मैच जितवा दिए हैं और चौथा मैच भी जो है वो पाकिस्तान बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है जीतने के लिए जा रहा है। तो अगर 4 मैच जीत कर भी इफ एंड बट्स वाली सूरत हाल रही तो क्या फीलिंग है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग सब यही बोल रहे हैं कि 2 साल कंटिन्यू मैच नहीं जीते। हमने 5-0 श्रीलंका को भी हराया था, और वो तो खैर वो अलग बात है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल 3 मैचेस हम वर्ल्ड कप में जीतें। तो देखें, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच है कि उसमें भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरें। और जहाँ तक रही बात इफ एंड बट्स की, तो मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ें हमारे हाथ में, हमारा कंट्रोल उसी पे होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया तो आगे भी आसानी करेंगे। बीइंग ए क्रिकेटर, थोड़ा सा दुख हुआ जिस तरह इंग्लैंड का और इंडिया का मैच था, तो थोड़ा सा दुख हुआ कि इतने बड़े खिलाड़ी ने अच्छा किरदार अदा नहीं किया। नहीं, देखें, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैंने सीरियसली पूरा मैच नहीं देखा। मैंने आखिरी के 10 ओवर देखे, और जहां मैंने जो फील किया, मैं समझता हूं इंग्लैंड के बॉलर्स ने आखिरी ओवर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। आखिरी सवाल, किस टीम की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में आए तो किस टीम को अपने साथ सेमीफाइनल में देखना चाहेंगे? सर, हमारी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचे, और जो भी टीम आएगी हम हैप्पी खेलेंगे इंशाल्लाह। कोच मिकी आर्थर का कहना है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच में शिकस्त एक डरावना ख्वाब था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच में दोनों टीमों ने हैरानकुन खेल पेश किया। टॉप ऑर्डर बैटिंग को मजबूत करने के लिए मेहनत की है। उम्मीद है आइंदा मैचेस में टीम फतह हासिल कर लेगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, ये देखते हैं। That really haunts me would have been the loss to the West Indies. We couldn't do anything about the rain. You can't control that. We could control the West Indies game, and I think that was the game right at the start of the tournament where we should have hit it firing and we didn't. The intensity was amazing. I thought the two teams going at each playing was amazing. Obviously can't really comment on what happened between the supporters. What I do know though is we've had unbelievable support here in England. I mean, Birmingham, the game against Birmingham was probably the best atmosphere I've ever seen at a cricket ground. The roar when Babar Azam got 100 was amazing. I just want to thank the supporters we've had here in England. It's been amazing. प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।